Hello everyone, welcome to Vyas Edification. In this session we are going to discuss solution of IIT JEE Advanced 22 examination questions and that is related to paper number 1 in section number 1. So in the physics we have total 8 number of question in section number 1. So all the questions are related to numerical value. So now we are going to discuss all the solutions and detailed solution of all these questions. So concentrate on a screen. Let's start. Now student, we are going to discuss question number 1 of paper number 1 in section number 1. Clear? So this is a question, we can say it is related to gravitation or this question is related to escape velocity. Clear? So now concentrate on this question. देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बेटा, टू स्फेरिकल स्टार्स है हमारे पास A एंड B जिनकी डेंसिटी आपको गिवन है रो A एंड रो B. क्लियर? A and B having same radius. Okay, fine, and their masses is related by mb equal to twice of ma. Now due to interaction process, star A loses some of its mass and so that we can say its radius becomes half while its spherical shape is retained, we can say its density remains, that is rho A. Okay, fine. The entire mass lost by the A, it is deposited on a thick spherical chain on B. इसका मतलब जो भी मास स्फेरिकल शेप ए पे लॉस्ट हुआ है वो सारा का सारा मास कहाँ जाके सिचुएटेड हो गया बेटा, स्फेयर बी के ऊपर. यस और नो? एंड इट इज ऑल्सो गिवन, लेट्स सपोज वी आर हैविंग वी ए एंड वी बी आर द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए एंड बी from the interaction process. Now our objective in this question is to calculate ratio of escape velocity of B to A. Clear? And this is also given equal to under root of 10n upon 15 power 1 by 3. Clear? So now our objective in this question is to calculate value of n. Clear to everyone? So now we are going to discuss solution. Concentrate on a screen. So actually if you here analyze this question, actually this question is very easy. If you can apply some logic, you can easily solve this question. So now let's concentrate on a screen. Two spherical stars A and B having density rho A and rho B. Clear? So let's suppose I am drawing here. Let's suppose we have this is star number 1 and let's suppose this is star number B. Clear? This is star B and this is star A. Clear to you? Now in this question it is given having density rho A and rho B. So this is rho A and this density we have rho B. Clear? Okay. Both are having same radius. Means we can say this radius we have R, this radius is also R. This is given in a question. Okay, fine. And masses are related H. So mass of this star is given Ma. This is equal to Mb and there is one relation that is given between them, that Mb. This should be equal to twice of Ma. This is given to you. Clear? Now in this question it is given due to some interaction process star A loses some of its mass. We don't know कि कितना मास जो है स्टार ए लूज करता है, बट इन्होंने बोला कि इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ और उसके कारण से स्टार ए ने जो है कुछ मास को लूज किया. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी न्यू पोजिशन बनाते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द स्टार ए आफ्टर सम मास इज रिमूव्ड. क्लियर? लेकिन कितना मास रिमूव हुआ उसके लिए ये बोला कि उसकी रेडियस जो है बेटा हाफ हो जाती है, बट इसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी बेटा, सेम है ना. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी रेडियस जो है हाफ हो गई लेकिन इसकी डेंसिटी सेम है, तो क्या हम इसका मास फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि डेंसिटी कितनी हो जाएगी. मान लिया कि ये एम ए डैश है डिवाइड बाई 4/3 पाई, यहाँ पर आ जाएगा बेटा r/2 होल क्यूब. दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, एम ए अपॉन 4/3 पाई r क्यूब. तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल और केवल 8 रह जाएगा. क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एम ए डैश. दिस शुड बी इक्वल टू एम ए. तो क्या हम एम ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, दिस इज इक्वल टू एम ए बाई 8. क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू जो होगी मेरी एम ए बाई 8 होगी. क्लियर? इसका मतलब पहले जो मास था स्टार ए के ऊपर वो कितना था बेटा, एम ए. अब कितना रह गया, एम ए बाई 8. इसका मतलब इसने टोटल कितना मास लूज कर दिया, हम कह सकते हैं 7ma/8. क्लियर टू एवरीवन? सो अच्छा, वो मास जो लूज किया वो मास गया कहाँ? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि वो मास जो है बी के ऊपर चला गया. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसके ऊपर कुछ मास डिपॉजिट हो गया तो डेफिनेटली इसकी जो रेडियस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई होगी. यस और नो? तो मान लिया कि पहले रेडियस अगर r थी, अब हमने मान लिया कि रेडियस कितना हो गया बेटा, r2. क्लियर? अच्छा, इस पे जो मास था वो इधर चला गया,
ठीक है। तो यहाँ पे मास जो है ऑलरेडी कितना था बेटा, एम बी इक्वल टू व्हाट वी, ट्वाइस ऑफ एम ए, क्लियर। एंड यहाँ से कितना आया बेटा, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ एम ए बाई 8, क्लियर। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं बेटा, 8 मल्टीप्लाई टू 16, ये टोटल हो जाएगा हमारा 23 एम ए बाई 8। ये हो गया टोटल मास ऑन द स्टार बी आफ्टर डिपॉजिटिंग सम मास फ्रॉम ए, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो वाला पार्ट है जो कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2g m e अपॉन r e, क्लियर। तो एक तो मास चाहिए हमें बेटा और एक हमें रेडियस भी चाहिए, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अब हम कैसे भी करके ये r2 को कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अच्छा, r2 कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, उसको समझते हैं। देखो, R2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये बोल सकते हैं कि जितना वॉल्यूम ऑफ मास, हम ये कह सकते हैं जितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल A से जो है कम हुआ है वो सेम वॉल्यूम जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, हम ये लिख सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम मतलब जो इसका रिलीज हुआ है या इसका जो है ट्रांसफर हुआ है B को, वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले रेडियस कितना था बेटा r3, अब कितना रह गया बेटा r/2 होल क्यूब। अच्छा, इसको किसके बराबर करना है अब हमें, 4/3 पाई। स्टार बी के लिए जो रेडियस है वो रेडियस कितनी हो गई r2, सो वी कैन से दिस इज r2 क्यूब माइनस, अच्छा इनिशियल रेडियस कितना था बेटा, दिस इज r, यस और नो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4/3 पाई 4/3 पाई ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल, ये r क्यूब और ये r क्यूब, ये टोटल कितना हो गया, ट्वाइस r क्यूब, एंड इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर कितना है बेटा r2 क्यूब, और ये जो है ये इधर आएगा तो ये कितना बेटा माइनस टाइम्स ऑफ r क्यूब बाई 8, क्लियर। तो क्या हम यहाँ से r2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यस डेफिनेटली हम इसको r2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगी बेटा, देखो r2 क्यूब दिस शुड बी इक्वल टू, हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो है बेटा r क्यूब ये होगा माइनस का और ये है हमारा दिस इज प्लस, है ना। अब समझना ये कितना हो गया 15, दिस इज r क्यूब बाई 8, क्लियर। तो यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं r2 दिस शुड बी इक्वल टू 15 पावर 1/3, क्लियर, एंड दिस इज r/2, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास r2 भी आ गया। अच्छा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी का रेशियो, क्लियर। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, है ना, आप समझ सकते हैं। अब समझना दिस इज 15 r क्यूब, है ना। अब समझिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है VB ओवर VA, सो VB ओवर VA। अच्छा, पहले मुझे बता दो बेटा कि आपको ये तो पता है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2g m e अपॉन r e, है ना। तो यहाँ पर अगर आप समझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, m e हमारा डिफरेंट होगा और r e भी डिफरेंट होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ B ओवर रेडियस ऑफ B डिवाइड बाई मास ऑफ A ओवर रेडियस ऑफ A, क्लियर। अच्छा, मास ऑफ B की अगर हम बात करते हैं तो कितना बेटा 23 ma बाई 8, क्लियर। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं BB बाई BA, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम राइटिंग, MB कितना बेटा 23 ma बाई 8, 23 ma बाई 8, ये हमें क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद हमें चाहिए RB का मतलब क्या हो गया बेटा R2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज 15 पावर 1/3 एंड दिस इज r/2, क्लियर। अच्छा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब समझना बेटा ma जो स्टार A था, स्टार A का मास कितना रह गया था m/8, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दिस इज ma/8। अच्छा, उसकी रेडियस कितनी हो गई थी बेटा, हाफ हो गई थी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा r लिख देते हैं r/2, क्लियर। अब देखो बेटा r/2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ma से ma कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं VB बाई VA, सो दिस VB बाई VA इट शुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 23/15 पावर 1/3, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दिया है कि VB बाई VA इसकी वैल्यू कितना है अंडर रूट ऑफ 10n अपॉन 15 पावर 1/3, क्लियर। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 23 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ n, यस और नो। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 23/10, दिस शुड बी इक्वल टू 2.3, क्लियर। सो वैल्यू ऑफ n वी हैव हियर दिस इज 2.3, क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज अ वेरी, यस डेफिनेटली समवॉट ट्रिकी क्वेश्चन था,
ठीक है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था बेटा, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था कि डेंसिटी सेम रहती है, तो वहां से हमें क्या मिला बेटा, वहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मास ऑलरेडी स्टार ए पर रह गया है और कितना मास ट्रांसफर हो गया है। क्लियर टू एवरीवन? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज 2.3। क्लियर? अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें, ठीक है, यस, अगर मैं ये बात करूं कि क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला और थ्योरी पे बेस्ड था, यस हमने फॉर्मूला यूज किया, लेकिन उसके अलावा हमें वॉल्यूम जो है कितना ट्रांसफर हुआ उसका भी कॉन्सेप्ट यूज करना था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो हम इसको नहीं कह सकते। यस, इट इज बेस्ड ऑन वन और मोर चैप्टर नहीं, ये केवल ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड था, सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। अच्छा, क्या मिसलीड कर रहा था? अरे बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, तो इसमें तो आप जो वैल्यू पुट करेंगे वही परफेक्ट है, ठीक है, तो कोई मिसलीड वाली बात नहीं आती। क्या कॉम्प्लेक्स है? यस, मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपका कंसंट्रेशन अगर बेटा एग्जाम में प्रॉपर था तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था कि शायद कहीं ना कहीं बच्चा इस पे मिस्टेक कर देगा या उसको लीव कर देगा। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन टू यू। क्लियर? सो करेक्ट आंसर वी हैव 2.3। क्लियर? Now dear student, we are going to discuss here question number 2 of section number 1 of paper number 1. Clear? So now concentrate. In this question it is given minimum kinetic energy needed by an alpha particle to cause nuclear reaction. This is given to you one reaction. Okay. It is assumed that this neutron, we can say it is at rest in the laboratory frame. Actually laboratory frame means what? We are observing from ground. Clear? Acha. Masses of this one, all the masses is given to you in the AMU, and you have to take one AMU equal to 930 mega electron volt per c square. This is given to you. Now our objective here is to calculate value of n. Where is the n? This one. Clear? This one. Our objective here is to calculate value of n. Clear? So now we are going to discuss solution of this question. Clear? So concentrate on a screen. Now dear student, actually you know, whenever we have nuclear reaction, definitely we can say there is some loss of the mass is to be take place, and from one equation we know, we can say delta E or equal to delta mc square, or you can also say that q value we can find by mass defect multiplied with c square. Clear? अच्छा, मास डिफेक्ट कैसे आएगा बेटा? यहाँ पर हम बोले मास डिफेक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले मास किसका? नाइट्रोजन, सो न्यूट्रॉन, सो वी कैन से दिस इज n प्लस यहाँ पर आ जाएगा बेटा अल्फा पार्टिकल का हीलियम, इसमें से हम माइनस कर देंगे यहाँ पर प्रोटॉन का मास माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा बेटा? मास माइनस। क्लियर? एंड अगर हम यहाँ बात करें इट इज मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर। क्लियर? तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी बेटा ये जूल में मिलेगी, बट अगर हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए और वो किस में चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, क्योंकि जनरली हम जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही हम जो है क्यू वैल्यू को मेजर करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू, चलो वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो गया बेटा? 16.006 प्लस, अच्छा हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का कितना है बेटा? और वी कैन से अल्फा पार्टिकल कितना है? 4.003 माइनस, अच्छा प्रोटॉन का कितना होगा बेटा? यहाँ पर 1.008 माइनस, दिस इज वी कैन से 19.003। क्लियर टू यू? अच्छा, मल्टीप्लाई सी स्क्वायर कर रखा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 930 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? इन द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज कैंसिल्ड आउट। क्लियर? अच्छा, इसको सोल्व करते हैं बेटा, क्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से समझो, ये हो जाएगा मेरा 20.009 माइनस। क्लियर? अब देखो इसको ऐड करो, कितना आता बेटा? 20.011। क्लियर? एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद 930। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है। यस, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू कितना है बेटा? 0.02, वो भी माइनस का। अच्छा, ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो रिएक्शन है दिस इज वी कैन से एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? सो माइनस 0.02 इंटू मल्टीप्लाई 930, ठीक है, 0.0 ये वाला 0.002। क्लियर? अच्छा, यहाँ से अगर हम समझ गए होंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? सो दिस इज इक्वल टू 1860 डिवाइड बाई 1000। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? दिस इज 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू किसकी आई? ये वैल्यू आई है हमारे क्यू वैल्यू, यस और नो? चलिए अब एक्चुअली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, जो जनरली हम जब ईयर लॉन्ग क्लास के अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस तरह से यहाँ पर
इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, वो वैल्यू फाइंड कैसे होगी बेटा, और कौन सी वैल्यू बेटा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करके एक फॉर्मूला निकालते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो भी मिनिमम, तो वो कैसे आएगी बेटा, जो क्यू वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 1। क्लियर, यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। अच्छा, क्यू वैल्यू की वैल्यू कितना है बेटा, 1.86, सो दिस इज 1.86 मल्टीप्लाई। अच्छा, एम अल्फा कितना बेटा, 4.003। क्लियर। अच्छा, एन का कितना है बेटा, दिस इज 16.006, सो 16.006 प्लस 1। Approximately if we calculate, this is 4/16, approximately we can say this is 1/4. Clear? So 1.86, this is 1/4 plus 1. तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाई 5/4। क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, ये कितना हो गया बेटा 4। क्लियर। सो वी कैन से दिस इज 0.4। क्लियर, 16 वी हैव एंड वी कैन से 0.46। क्लियर, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 30, वी हैव 3, तो 3 एंड वी कैन से ऑलमोस्ट 2.30। क्लियर, सो अप्रोक्सीमेटली वी आर गेटिंग 2.30 एंड दिस वैल्यू इन द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। सो हमें जो है बेटा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर देना है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा 2.30। सो वैल्यू ऑफ एन वी आर गेटिंग हियर 2.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Clear to everyone? This is 30, we have 3 correct. Clear? So correct answer we have 2.30। तो समझ में आया बेटा। अगर आप बोलोगे यस डेफिनेटली ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने क्लास में मोमेंटम कंजर्वेशन और बाकी सब चीज़ों को भी पढ़ा है तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रहता है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, क्यू वैल्यू मल्टीप्लाई एम अल्फा अपॉन एम एन प्लस 1। क्लियर, और हमारा आंसर यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस की बात करें इस क्वेश्चन की, सो या फिर डेफिनेटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, नहीं, हाँ डेफिनेटली हमें थोड़े से प्रिंसिपल्स हमें यहाँ यूज करने पड़े, उसके बाद फॉर्मूला आता है। यस। अच्छा, क्या और कोई चैप्टर इन्वॉल्व था, नहीं, ठीक है। सारा का सारा जो क्वेश्चन था, सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो किसके ऊपर बेस्ड था बेटा, रेडियो एक्टिविटी, है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसके ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल मैं इसको बोलूँगा यस इजी टू मॉडरेट लेवल का था और इसको इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Clear? Now dear student, we are going to discuss question number 3 of section number 1, and my dear student, this is the easiest question in this paper. Clear? In this question it is given to you in the following circuit, value of C1, C2, C3, C4 and C5 is given to you, and we have to calculate the charge stored in a C3. Clear? So if you apply here concept point potential method, you can directly find here answer. Clear? So now concentrate ना। अब ये देख सकते हो बेटा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो बैटरी है, ये हमारी बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रही है बेटा 2 वोल्ट। तो अगर एक पॉइंट हम यहाँ कंसीडर करते हैं तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा 2 वोल्ट, और इसको हमने मान लिया बेटा कितना है 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। तो ये पॉइंट जो है ये भी कितना वोल्ट पे होगा बेटा 0, ये भी कितने पे होगा 0, एंड दिस विल ऑल्सो ऑन 0। क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये 2 वोल्ट का है, यहाँ पर भी कोई कैपेसिटर नहीं। अब यहाँ नहीं लिख सकते आप, क्यों, बीच में कैपेसिटर आ गया, ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव इन दिस क्वेश्चन वी हैव चार्ज स्टोर्ड इन C3। क्लियर। अब मुझे चार्ज स्टोर निकालना है, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ Q3 इक्वल टू C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव, यस और नो। सो वी कैन से वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज C3 एंड V is given to you, this is 2 minus 0, so यहाँ पर हम लिखेंगे 2C3। क्लियर। C3, अच्छा C3 कितना है बेटा यहाँ पर 4 माइक्रो फेरेड, सो 4 माइक्रो फेरेड। क्लियर। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया 8 माइक्रो फेरेड। तो बेटा ये तो जेई मेंस का क्वेश्चन है और जेई मेंस से भी बिलो लेवल का, ठीक है, लेकिन यस डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल बी एडवांटेजेस फॉर यू, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले इसी को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन देखते ही कंप्लीट हो जाना, डेफिनेटली टाइम सेविंग क्वेश्चन भी था। क्लियर। तो हम बोलेंगे करेक्ट आंसर हमारे पास है दिस इज 8 माइक्रो कूलम। यस और नो। क्लियर टू एवरीवन। सो इफ वी टॉक अबाउट एनालिसिस,
तो एनालिसिस बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी में ही इसको रखूंगा। फॉर्मूला बेस्ड था तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं कह सकते, बट अगर पॉइंट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर टू यू? Yes or no? So this is a question that is having a easy. I will give you rating easy level. Clear? Now, dear student, we are going to discuss question number 4 of section number 1. So concentrate on a screen. In this question, it is given we have a road and length is given to you 2 centimeter. It is making an angle 2 pi by 3 with principal axis of thin convex lens. Okay, fine. The lens has a focal length of 10 centimeter and is placed at a distance of 40 by 3 centimeter from the object as shown in figure. Fine. The height of the image, this is given to you 30 root 3 by 13 centimeter and angle made by it with respect to principal axis is given to you. This is alpha. Clear? Now our objective in this question is to find value of n when we have alpha. This is pi by n. Clear? So ये क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए कंसंट्रेट ऑन अ स्क्रीन। अब देखो बेटा इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। यहाँ पर आपको जो रोड दिया है, इस रोड की जो आपको लेंथ दी है दिस इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये एंगल आपको कितना दिया है 2 पाई बाई 3। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज पाई बाई 3। यस और नो? तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर ये हमारे अगर इसके दो कंपोनेंट हम कर सके तो लेंथ का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, सोच के बताओ, 2 cos 60। यस और नो? 2 cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो यह कितना आ जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं इसकी हाइट को h मान लेता हूँ, समझना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 sin 60। sin 60 कितना होता है √3/2, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा बेटा √3। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सुनो। अब ये देख सकते हैं बेटा, अगर ये 1 सेंटीमीटर की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर के लिए जो भी इमेज हमें यहाँ मिलने वाली है वो तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज एक्सियल मैग्निफिकेशन। यस और नो? और अच्छा, एक्सियल मैग्निफिकेशन का अगर आपने पहले लेंस फॉर्मूला अगर यूज करके और अगर आपने मैग्निफिकेशन काउंट किया हो तो आपको पता लगेगा वो मैग्निफिकेशन L'/L, दिस इज गिवन बाय M1 एंड M2 एंड आई एम एज्यूमिंग दिस पॉइंट H1 एंड दिस पॉइंट H2। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें जो देखने को मिलेगा दिस इज 1 डैश और यहाँ पर ये हमें मिलेगा बेटा 2 डैश। यस और नो? अच्छा, अब समझिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मेरी जो है ये लेंथ जो है बेटा वो क्या है L डैश। क्लियर? अच्छा, तो क्या मैं L डैश की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, है ना। L डैश की वैल्यू कितना होगा बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, L डैश दिस इज गिवन बाय M1 M2 एंड मल्टीप्लाइड विद L। क्लियर टू यू? नाउ our objective here is to calculate this value because our objective here is to calculate tan alpha। ठीक है, तो ये वाली हाइट कैसे आएगी बेटा, मैग्निफिकेशन से। अब मैग्निफिकेशन कैसे आएगा बेटा, यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन क्या M2, तो मैं लिखूंगा M2 दिस इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा लेंस, लेंस है तो हम बोलेंगे V/U। यस सुनो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात करेंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं M2 × H। यस सुनो, तो ये मेरे पास आ गई हाइट ऑफ इमेज। क्लियर? क्या अब मैं इसमें tan अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस। So value of tan alpha this is given by, we can say this is height of image over, ये हमारा क्या आ गया बेटा L डैश। ठीक है, अच्छा, हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी बेटा, हम ऐसे लिखेंगे M2H डिवाइड बाई, यहाँ आ जाएगा M1 M2 एंड मल्टीप्लाइड विद L। क्लियर? M2 से M2 को क्या कर दो, कैंसिल, तो यहाँ से आ गया बेटा tan अल्फा दिस शुड बी इक्वल टू H/M1L। अब यहाँ देखो बेटा H/L, H/L क्या है, यहाँ से समझो, H/L ये वैल्यू कितनी है बेटा 1060। या सुनो, तो मैं यहाँ से इसको मेंशन कर सकता हूँ tan अल्फा, या आप इसको ऐसे समझो H/L, H कितना बेटा √3, L कितना है 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज √3 डिवाइड बाई M1। क्या मैं M1 कैलकुलेट कर सकता हूँ? सोच के देखिए, क्या हम M1 को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस और नो? क्या हम M1 कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, सोच के बताओ। यस, हमारे पास कौन सा लेंस है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस। यस और नो? अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं M1। क्लियर? सो M1 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो M1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास दिस इज F/F+U। क्लियर? अच्छा, इसका फोकल लेंथ कितना है बेटा कॉन्वेक्स लेंस का, दिस इज वी कैन से फोकल लेंथ इज गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 10, ये हो गया प्लस का 10, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है
-40/3 centimeter because light ray is going in a right direction, we are measuring distance in the left direction. So यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 10 डिवाइड बाई दिस इज -10 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ से मेरे को वैल्यू कितनी मिल गई -3. किसकी वैल्यू बेटा m1 की. तो क्या अब मैं यहाँ पर 10 अल्फा इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ. अच्छा ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी. क्लियर. तो यहाँ पर मैं पहले 10 अल्फा निकाल लेता हूँ. सो 10 अल्फा है ना. तो 10 अल्फा दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर आ गया बेटा √3 डिवाइड बाई ये वैल्यू आ गई मेरी 3. क्लियर. यहाँ से मेरे पास आ जाएगा बेटा 1/√3. क्लियर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 अल्फा दिस शुड बी इक्वल टू 10 π/6. क्लियर. सो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा दिस शुड बी इक्वल टू π/6. क्लियर. लेकिन आपको क्वेश्चन किस में बोला बेटा, दिस इज इक्वल टू π/n. क्लियर. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 10 दिस इज व्हाट 10 अल्फा दिस शुड बी इक्वल टू 10 π/6. क्लियर. सो वी कैन से अल्फा इक्वल टू π/6 एंड दिस इज गिवन टू यू इन ए क्वेश्चन, दिस इज π/n. क्लियर. इससे ये कैंसिल हो गया, n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 6. क्लियर. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव 6. Clear. So now if we talk about the analysis of this question, yes, I can say this question is already again formula based question. No, directly you know how can we calculate axial magnification. Clear. How can we find here m. So overall अगर मैं बात करूँ, हाँ क्वेश्चन इजी ही पैटर्न का था, बट इंपॉर्टेंट बात है बेटा आपको वहाँ पे क्लिक करना चाहिए. अगर आप इसकी कैलकुलेशन में उलझ गए, अगर आप वहाँ पे एक्चुअल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करने लग गए, तो फिर तो बेटर है बेटा इस क्वेश्चन को लीव कर देना. ठीक है. लेकिन अगर आप मान लो आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर पा रहे हो, तो देखो कितनी शॉर्ट कैलकुलेशन में हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया. ठीक है. तो यस डेफिनेटली इजी लेवल का क्वेश्चन था. यस, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा यहाँ पर हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए, है ना. अगर कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यस सर हमसे हो गया है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर नहीं हुआ. कोई बात नहीं बेटा, जेईई एडवांस में आपको वो क्वेश्चन चूज करने होते हैं जहाँ पे आपकी स्कोरिंग सबसे ज़्यादा हो रही है. क्लियर टू यू. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. Now dear student, we are going to discuss question number 5 of section number 1. In this question it is given at time t equal to 0 we have a disk of radius 1 meter. It starts to roll without slipping on a horizontal plane. Okay, fine. With an angular acceleration, this is 2/3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk at time t equal to 0. It is at the contact point of a disk. Okay, fine. And later on at time t equal to √pi second, stone detaches itself and flies off tangential from the disk. Clear. So the maximum height that is reached by the stone measured from the plane. Okay. Actually this question, in this question with the circular motion the projectile motion is also connected. Clear. So बेटा ये क्लास में हम बहुत बार बोलते हैं कि बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा है जिसको हम किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, और बाद में जब उसको बोला कि वो टेंजेंशियली जब फ्लाई होता है तो वहाँ पे ये जो है मैक्सिमम हाइट रीच करता है. यानी पहले हम सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. क्लियर. सो नाउ फॉर द सॉल्यूशन कंसंट्रेट ऑन अ स्क्रीन. देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एट टाइम t इक्वल टू 0 एट डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर. ठीक है. तो मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पर ये हमारा सरफेस है और मान लेते हैं कि ये हमारी डिस्क होगी. बहुत ध्यान से समझना. लेट्स सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पर ये जो है इसके साथ कांटेक्ट में है. ठीक है. ये इन्होंने बोला है और ये बोला है कि विदाउट स्लिपिंग है. अच्छा स्लिपिंग नहीं है, इट्स ओके. अब आपको बोला है कि हैविंग एंगुलर एक्सीलरेशन. एंगुलर एक्सीलरेशन तो मान लेते हैं कि बेटा इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा दिस इज 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. तो ये आपको दिया है 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. अब आपको बोला एट टाइम t इक्वल टू 0 ये जो है इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है वो ये रहा. ठीक है. अब उसने बोला कि मुझे बता दो t इक्वल टू √pi सेकेंड पे ये पहले कहाँ होगा, है ना. तो हमने बोल दिया कि लेट्स सपोज दिस इज सेंटर, लेट्स सपोज दिस इज सेंटर एंड लेट्स सपोज आफ्टर टाइम t दिस पार्टिकल इज हियर. क्लियर. सो आई एम एज्यूमिंग this particle is here and let's suppose time this is given to √pi second. Clear. तो क्या हम यहाँ पर पहले ये पोजीशन पता कर सकते हैं कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू √pi सेकेंड तक इसने कितना एंगल कवर किया. सो लेट्स सपोज एंगल कवर्ड दिस इज थीटा. क्लियर. सो अगर एंगल कवर्ड थीटा है तो
यहाँ पर क्या हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बेटा थीटा ये स्टार्ट कर रहा है बेटा रेस्ट से, है ना, स्टार्ट किससे कर रहा है बेटा? रेस्ट से। तो हम यह लिख सकते हैं 1/2 अल्फा दिस इज टी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से थीटा हमें मिलेगा 1/2 अल्फा दिस इज 2/3 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ पाई दिस इज स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से हम बोलेंगे 2 से 2 कैंसिल, सो थीटा कितना हो गया? 1/3 दिस इज पाई। क्लियर? सो थीटा की वैल्यू आ गई मेरी पाई/3, मतलब मेरा ये एंगल आ गया बेटा 60 डिग्री। क्लियर? अब आप ये समझो कि ये जो पार्टिकल है ये t = 0 से यहाँ पहुँच गया, है ना, और अब उसके बाद ये टेंजेंशियल फ्लाई कर रहा है। या सुनो, तो क्या हम यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। v टेंजेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? r अल्फा। यस और नो? यस, सॉरी, दिस इज ओमेगा r। क्लियर? सो v टेंजेंशियल वी हाउ दिस इज ओमेगा r। अच्छा, r कितना है बेटा? क्या क्वेश्चन में दिया है? यस, r इज व्हाट? 1। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी टेंजेंशियल स्पीड होगी वो हमारी किसके बराबर होगी बेटा? ओमेगा के बराबर। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये पार्टिकल जब ऐसे जाएगा तो अब ये क्या करेगा बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से यानी डिस्क से डिटेच होने के बाद अब ये ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा। या सुनो, यानी मैं कह सकता हूँ कि अब उसके बाद ये पार्टिकल जो है वो ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा और कहीं ऐसे जाके गिरेगा, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इन दिस क्वेश्चन इज व्हाट? हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। और कहाँ से कैलकुलेट करनी है? क्या दिया है? यस, मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन, मतलब यहाँ से, है ना। तो अगर हम यहाँ से बात करें, समझना बेटा, ये वाली जो है ये हमारे लिए हो जाएगा बेटा इसका एच मैक्सिमम। क्लियर? अच्छा, एच मैक्सिमम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है क्या? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, u कितना है बेटा यहाँ पर? दैट इज मैं कह सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर, है ना, क्योंकि v है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा कितना आएगा वो सोचो बेटा। अगर हम यहाँ बात करें, ये एंगल थीटा है 60 डिग्री, समझना, ये 60 है, ये वाला 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया बेटा? 60 हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वापस 30 हो गया, ये 60 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना बेटा? 60। सो दिस इज 60 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमें क्या दे दिया बेटा? 2g। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं एच मैक्सिमम दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, क्या ओमेगा को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस। कैसे बेटा? हमें पता है कि t = 0 पर वो रेस्ट पे था, तो ओमेगा नोट तो 0 हो जाएगा प्लस अल्फा टी। अल्फा कितना दे दिया बेटा? 2/√3 और टाइम कितना है बेटा? अंडर रूट ऑफ पाई। ठीक है, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, कितना हो गया बेटा? 4/9 दिस इज पाई। क्लियर? अच्छा, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज 3/4 इंटू 1/20। ठीक है, देखो क्या क्या कैंसिल हो गया बेटा? ये कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ से ये बेटा कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास π/60। ये π/60 वैल्यू किसकी आई? मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम हाइट इस प्लेन से। ठीक है, लेकिन बात ये आ रही है बेटा, अगर ये टोटल रेडियस 1 मान लो सेंटीमीटर है, यस 1 मीटर है ना, तो उसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? 1 cos 60। यस और नो? तो वो कितना हो जाएगा बेटा? हाफ। तो मुझे बताओ क्या हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, दिस इज ऑल्सो हाफ। क्लियर? अच्छा, ये अगर हाफ है तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या मैं टोटल हाइट फ्रॉम द प्लेन क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूँगा बेटा? अगर मैं टोटल हाइट की बात करता हूँ फ्रॉम द प्लेन, टोटल हाइट फ्रॉम प्लेन, टोटल हाइट फ्रॉम प्लेन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये चीज समझो, यहाँ पर ये कितना है बेटा? हाफ मीटर, और ये एच मैक्सिमम मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ प्लस एच मैक्सिमम कितना आ गया बेटा? π/60। अब आप इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ये वैल्यू कितना दिया था? हाफ प्लस x/10। यस सुनो, तो अगर हम हाफ प्लस इसको पाई कर दीजिए बेटा, है ना, हमें किस x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, x/10 दिया था, है ना, तो यहाँ से अब हमें वैल्यू निकालनी, देखो कैसे आएगी, समझो। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि x/10 जो है वो आपका π/60 के बराबर है। यस सुनो, तो यहाँ से अब देखो x की वैल्यू कितना हो गया बेटा? π/6। यस सुनो, अच्छा पाई की वैल्यू कितना होता है बेटा? 3.14 डिवाइड बाई 6। क्लियर? तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.5 वी हैव 2 लेफ्ट, सो 0.52, तो x का वैल्यू हमें यहाँ देखने को मिलेगा, दिस इज 0.52। क्लियर टू एवरीवन? तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर हमने सर्कुलर मोशन एज वेल एज प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज किया और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिला।
क्लियर. सो करेक्ट आंसर वी हैव 0.52. अगर अब हम इसके एनालिसिस पार्ट की बात करें, यस मैं आपको बोलूँगा कि ये क्वेश्चन जो है, हाँ एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कह सकते. यस हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट या यूज किए, तो इजी टू मॉडरेट अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट में इसको मैं रखना चाहूँगा. ठीक है. सो अगेन if you have all the concept clarity you can easily solve this question also. Clear. But most important part in the examination is to cool your mind, always keep calm and concentrate on your paper only. Clear. So this is all about solution of this question. Now dear student, we are going to discuss question number 6 of section number 1. Clear. In this question it is given a solid sphere of mass 1 kg and the radius 1 meter. It is rolls without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination 30 degree from the horizontal. Okay. Two forces of magnitude 1 Newton each parallel to inclined plane act on the sphere both at a distance r equal to 0.5 meter from the center of a sphere as shown in figure. Fine. The acceleration of the sphere down plane is what? Clear. तो एक्चुअली बेटा ये प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट आपको, प्योर रोलिंग का क्वेश्चन आपको दिया है, जो कि हमने एक कोई स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, उसको हमने एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, प्योर रोलिंग कर रहा है. प्योर रोलिंग कर रहा है तो क्या हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर एल्फा? यस कर सकते हैं. क्या हम टॉर्क की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा भी एक्ट करेगा. यस और नो. सो नाउ कंसंट्रेट. देखिए बेटा अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, है ना. यहाँ पे आपको बोला है कि इसका मास जो है वो 1 kg है, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 kg, और रेडियस जो है वो भी हमारे पास कितना है बेटा? दिस इज 1 मीटर. क्लियर. अच्छा उसके बाद यहाँ थीटा जो दिया है, दिस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. क्लियर. टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन दिस इज एक्टिंग पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया बेटा? ये 1 न्यूटन, ये भी हमें क्या दे दिया? 1 न्यूटन. क्लियर. अच्छा क्या और कोई फोर्स इस पे लग रहा है? यस mg लगेगा बेटा, है ना. तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स और लगेगा, दिस इज mg साइन ऑफ 30. क्लियर. अच्छा अगर हम बात करें, ये प्योर रोलिंग कर रहा है इस पॉइंट P के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, और हम बोल देते हैं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और इस डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ए सेंटर ऑफ मास से. क्लियर. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर एल्फा. क्लियर. अच्छा रेडियस कितना है बेटा? 1 मीटर. सो वी कैन राइट लाइक दिस ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू अल्फा. क्लियर. अब अगर मैं बात करूँ इस पी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? नेट टॉर्क दिस इज इक्वल टू आई एल्फा. यस और नो. तो नेट टॉर्क की बात करते हैं. चलो यहाँ से देखते हैं. ये 1 मीटर है, ये डिस्टेंस आपको दिए बेटा 0.5 मीटर क्वेश्चन में बोला है. ठीक है. तो इस पी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0.5. यस और नो. सो दिस इज 0.5. तो यहाँ पर हम देखें तो 1 न्यूटन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, तो 1 इंटू 0.5. क्लियर. अच्छा इसकी बात करें बेटा, mg साइन 30, m कितना है हमारे पास 1, g कितना हो गया 10, तो 10 मल्टीप्लाई हाफ, दिस इज इक्वल टू 5. तो अच्छा यहाँ पे हम बात करें तो ये भी क्या है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस टोटल कितना हो गया था बेटा? 5. अच्छा डिस्टेंस कितना है बेटा? 1. यहाँ तक क्लियर है. कहाँ से 1 है बेटा? 0.5 1 हो गई, रेडियस हो गई. ठीक है. ये अगर 1 न्यूटन की बात करते हैं तो 1 न्यूटन कैसे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अब आएगा -1. अच्छा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 1 प्लस हाफ, दिस इज 3/2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू. अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट P हम कैसे लिखेंगे बेटा? सेंटर के अबाउट कितना होता है? 2/5 mr². इसके अबाउट क्या होता है? 2/5 mr² प्लस mr². पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 7/5 mr². यहाँ तक समझ में आया बेटा? एक बार फिर समझा देता हूँ. 2/5 mr² प्लस mr². क्लियर. अच्छा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा? अल्फा. ठीक है. देखो ये कितना हुआ? 0.5 प्लस 5 माइनस 1.5, दिस शुड बी इक्वल टू 7/5. मास 1 है, रेडियस 1 है और ये अल्फा है. क्लियर. अच्छा तो यहाँ से हम देखें बेटा 5, ये कितना हो गया बेटा? 3.5, दिस इज 4 शुड बी इक्वल टू 7/5 एंड दिस इज मल्टीप्लाई अल्फा. तो यहाँ से अल्फा हमें क्या देखने को मिला? 20/7. अच्छा अब एक चीज़ समझो बेटा, आप ही ने बोला था कि यहाँ पर अल्फा जो है वो मेरा ए सेंटर ऑफ मास के बराबर है. ठीक है. आपको ये भी तो बोला था एक्सीलरेशन ऑफ स्फीयर दैट इज डाउन प्लेन. क्लियर. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए. क्लियर. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए सेंटर ऑफ मास दिस इज गिवन बाय 20/7, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
7 to 14 we have 6, so 6 2.8 and we can say this is in meter per second square. Clear to you? So correct answer we have 2.8 meter per second square or 20/7. Clear to everyone? So now if we talk about analysis part of this question, देखिए बेटा एनालिसिस की बात करें, यस मैं कहूँगा कि अगर आपको रोटेशन की अच्छी नॉलेज है ना, और रोटेशन पे आपका ग्रिप बहुत अच्छा है और आपको प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट भी आते हैं और आप किसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम्स अगर बनाना आपको अच्छे से आता है, ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा अप लेवल, मैं कहूँगा इजी से मॉडरेट लेवल, यस, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था कि आप इजीली कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी टर्म आपको नहीं दी जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट होके इस क्वेश्चन को करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट फुल मार्क्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. Now dear student, we are going to discuss question number 7 of section number 1. Clear? In this question it is given we have an LC circuit. This question is related to LC circuit. So we have an LC circuit with inductance L equal to 0.1 Henry. Capacitance is also given to you. The area of circuit is given 1 meter square. It is placed in a constant magnetic field strength B naught. It is given perpendicular to the circuit. Okay, fine. But this magnetic field is actually varying with the time by one relation B naught plus beta t. Clear? Beta is given to 0.04 Tesla per second. The maximum magnitude of current in the circuit, this is what? It means our objective in this question is to calculate value of B in milliampere. Clear? So now concentrate. अगर हम यहाँ पे बेटा एक LC सर्किट बनाते हैं तो LC सर्किट जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया बेटा इंडक्टर, दिस इज व्हाट वी हैव कैपेसिटर, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया कुछ नहीं, चलो मान लें कि ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला कि इसको हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है उसमें इस सर्किट को हमने रख दिया. ओके फाइन. तो मैंने बोल दिया कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी नॉट, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ पर बी जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है. अब मुझे बताओ कोई भी एक क्लोज लूप है, अच्छा एक और चीज़ लिख लो यहाँ पे, एरिया कितना दिया बेटा 1 मीटर स्क्वायर, है ना. अगर कोई भी लूप है और किसी भी लूप के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, एरिया वेरी करे, है ना. इन दोनों ही केस में हम कहेंगे कि उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी. यानी मैं बात करूंगा बेटा फ्लक्स की, फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा बी ए, हमने मान लिया दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है. अच्छा बी की बात करेंगे तो यहाँ पर बी कितना बेटा बी नॉट, आई एम राइटिंग लाइक दिस, दिस इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बीटा टी. अच्छा एरिया कितना बेटा दिस इज 1. क्लियर. तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा 5, दिस इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बीटा टी. क्लियर. अब देखो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. सो ई इक्वल टू दिस इज गिवन बाय डी फाई बाई डी टी. और अगर केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो देखो बी नॉट तो कॉन्स्टेंट है बेटा, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल. तो यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू बीटा. क्लियर. अच्छा तो यहाँ पर हो गया. अच्छा क्या बीटा का वैल्यू भी दिया है आपको क्वेश्चन में? यस. कहाँ गया ये रहा 0.04 टेस्ला, तो ये वैल्यू आ गई 0.04 वोल्ट. क्लियर. सो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमें मिल गई. अच्छा इससे क्या हो जाएगा बेटा, एक चीज़ समझो, हमें जो यहाँ पर फाइंड करना है दैट इज द मैक्सिमम करंट इन ए सर्किट. अब आपको सोचो बेटा यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेशन है मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. तो मैं जानता हूँ कि यही कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर हम कहते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो अगर मैक्सिमम करंट की अगर हम बात कर रहे हैं, समझना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं जस्ट इस वैल्यू को लिख रहा हूँ है ना बेटा, E इक्वल टू 0.04 वोल्ट. अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैक्सिमम करंट हमें चाहिए तो मुझे पता है बेटा कि I मैक्सिमम, अगर मैं बात करता हूँ I मैक्सिमम, तो I मैक्सिमम है तो मैं कहूँगा कि किसी भी टाइम के साथ जो करंट है वो चेंज नहीं कर रही है. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि टोटल EMF अगर इनके करस्पॉन्डिंग देखें तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है बेटा L डी आई बाई डी टी, और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है दिस इज Q बाई V. यस और नो, यस और नो. सो ये Q बाई C. यस. क्लियर. तो अब हम जानते हैं बेटा इसको हमने क्या कर दिया बेटा 0, तो यहाँ से हमें मिल गया चार्ज, ये कितना हो जाएगा दिस इज CE. Q इक्वल टू कितना आ गया बेटा CE. ठीक है.
अब मान लो कि बेटा हम मान लेते हैं कि ये वो चार्ज है जो एक हाइपोथेटिकल बैटरी, हम ये एज्यूम कर सकते हैं इसके अंदर प्रेजेंट है, तभी तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, और वो जो चार्ज यहाँ पे फ्लो करवा रही वो कितना है बेटा, C। तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है बैटरी ने कितनी दी? यस, सो वी इजीली कैलकुलेट टोटल एनर्जी दैट इज गिवन बाय बैटरी। तो हम कह रहे हैं Q इक्वल टू हमारे पास है CE, हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है बेटा, QV, है ना। अच्छा QV की बात करते हैं तो यहाँ पर Q कितना है बेटा, CE, दिस इज व्हाट, CE। अच्छा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये भी हमारा कितना बेटा, E। क्लियर? तो यहाँ से हम बोलेंगे कि टोटल एनर्जी जो बैटरी ने दी है दिस इज CE स्क्वायर। क्लियर? सो अब मैं इसको भी लिख लेता हूँ। तो टोटल एनर्जी या मैं इसको बोल सकता हूँ जो वर्क डन है दिस इज इक्वल टू CE स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे बताओ जो भी एनर्जी बैटरी देगी या जो भी एनर्जी हाइपोथेटिकल बैटरी दिया उसमें से कुछ पार्ट जो स्टोर हो जाएगा वो कहाँ होगा बेटा, इंडक्टर में, कुछ पार्ट कैपेसिटर में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, CE स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू 1/2 वी कैन से LI मैक्सिमम स्क्वायर प्लस। क्लियर? और इसमें एनर्जी कितनी कंजर्व होगी बेटा, Q स्क्वायर बाई 2C। यस और नो? Q कितना है हमारा, CE स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। इसको इधर लेके आओ, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 CE स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू 1/2 LI मैक्सिमम स्क्वायर। 1/2 से 1/2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे I मैक्सिमम स्क्वायर। I मैक्सिमम स्क्वायर कितना हो जाएगा, E स्क्वायर C बाई L। क्लियर? तो यहाँ से क्या हम I मैक्सिमम को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू E अंडर रूट ऑफ दिस इज C बाई L। बस अब इनकी वैल्यू पुट करो, ये कितना हो गया 0.04। क्लियर? अंडर रूट, अच्छा C का वैल्यू कितना है 10⁻³ डिवाइड L का वैल्यू कितना है 0.1। अब समझना, ये नीचे आएगा बेटा 10⁻3, ऊपर 10, टोटल 100 है, तो यानी हम कहेंगे इससे 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर हमारी I मैक्स की वैल्यू जो आई वो कितना आ जाएगा बेटा 0.04 डिवाइड बाई 10। क्लियर? यहाँ से वैल्यू मिली 0.004 एम्पियर। क्लियर? तो क्या हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, I मैक्सिमम दिस शुड बी इक्वल टू 4 × 10⁻³ एम्पियर। क्लियर टू यू? सो करेक्ट आंसर वी हैव दिस इज 4 मिली एम्पियर। क्लियर टू एवरीवन? सो यस, हाँ डेफिनेटली बेटा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। सो डेफिनेटली मैं इसको मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूँगा। ठीक है, तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं इसके अंदर, LC ऑसिलेशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन भी हमने लगाया है ना, तो सारे कॉन्सेप्ट हमने यूज किए। कॉम्प्लेक्स था, यस डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स था। तो इनिशियल लेवल पे अगर आपको टाइम नहीं मिलता है बेटा आप इसको अटेम्प्ट ना करें। यस, अगर लास्ट में आपको कुछ टाइम मिलता है और अगर आप कर सकते हैं तो इसको जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्लियर है? सो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. Now we are going to discuss this question number 8 from section number 1. A projectile is fired from horizontal ground with speed v and projection angle theta when acceleration of gravity it is given to you g. The range of projectile is given, this is small d. If at the highest point of the trajectory the projectile enters a different region where effective acceleration is given, g dash equal to g upon 0.81. Now new range is given by d dash equal to n times of d. Clear? Now we have to find what is value of small n. Clear? So now concentrate on a screen. Now listen carefully. अब इसका बेटा मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ. So let's suppose this is a simple diagram I am drawing here. Let's suppose here we have a projectile and let's suppose we are throwing with the speed v. Clear? It is making an angle theta. ठीक है, अगर मैं बात करता बेटा कि अगर ये नॉर्मल अपनी ट्रेजेक्ट्री में जाता तो मान लिया कि वो यहाँ पे स्ट्राइक करता. ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोला है कि इसकी जो रेंज है ये रेंज आपको गिवन है बेटा, दिस इज डी. क्लियर? तो क्या हम इस रेंज का फॉर्मूला जानते हैं बेटा? बोलो. यस, हम बोल सकते हैं दिस इज वी स्क्वायर साइन 2 थीटा दिस इज डिवाइडेड बाई जी. क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, मतलब हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं. समझना बेटा क्या हो रहा है. इस पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जान रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर हम ऑलरेडी एच मैक्सिमम पर है, लेकिन किसी भी कारण से यहाँ पे बोला कि जो जी है वो चेंज हो गया, मतलब जी बढ़ गया या घट गया, तो डेफिनेटली हम कहेंगे जी की वैल्यू इंक्रीज हो गई. जी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा, ये अगर वहाँ जा रहा था तो ये उससे पहले ही कहीं यहाँ स्ट्राइक करेगा. ठीक है, और मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितना है बेटा, डी डैश. ठीक है,
हमें ये भी पता है कि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है ये तो d/2 होगी और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो मैंने मान ली बेटा x। क्लियर? तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये d डैश जो है दिस इज इक्वल टू x प्लस d/2 ये होने वाला है। क्लियर है? अब आगे समझो, यहाँ तक क्लियर? अब क्या करने वाले हम लोग, पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि x को कैसे फाइंड करें, क्योंकि अगर x हमने फाइंड कर लिया तो हमारा तो काम हो गया। अच्छा एक पॉइंट समझो बेटा, इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो केवल एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ मुझे x कैलकुलेट करना है तो मैं x कैलकुलेट कैसे करूंगा, मैं x के लिए लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू v cos थीटा एंड मल्टीप्लाइड विद टी ए बी। मतलब मान लिया कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A से B तक जाने में जितना टाइम लगेगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा ए बी कैसे आएगा अब ये सोचो, उसके लिए हमने एक इक्वेशन लगा दी एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें एट मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर? सो वी कैन सी एस वाई दिस इज इक्वल टू वी कैन सी एच मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 1/2। अच्छा ए वाई कितना होगा बेटा, ए वाई यहाँ पर हो जाएगा, बताओ ए वाई कितना होगा, दिस इज व्हाट जी डैश, है ना, क्योंकि नया चेंज हो गया तो हम बोलेंगे g अपॉन 0.81 एंड दिस इज टी ए बी होल स्क्वायर। लेकिन एक चीज समझो बेटा, जब नॉर्मल अगर यहाँ g चेंज नहीं होता, चाहे g चेंज हो, h मैक्सिमम की वैल्यू तो सेम है, या सुनो, तो इसका मतलब मैं h मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, तो अगर हम h मैक्सिमम की बात करें, ठीक है, h मैक्सिमम की अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, दिस वन दिस इज v स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई, वी कैन राइट लाइक दिस इज g, दिस इज इक्वल टू 1/2 दिस इज g अपॉन 0.81 एंड दिस इज टी ए बी होल स्क्वायर। क्लियर? अब समझो बेटा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली है ना, साइन 2 थीटा दिया है, टी ए बी निकालना है ना, तो एक काम करते हैं टी ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे करूँ, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ समझना बेटा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे टी ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। सो टी ए बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैं यहाँ लिखूंगा बेटा 2v स्क्वायर दिस इज साइन ऑफ, ये तो बेटा रेंज का था, है ना, यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट लिखना है तो क्या लिखूंगा बेटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये लिखा जाएगा, ठीक है। 2 से 2 को क्या कर दिया बेटा मैंने, कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा टी ए बी, ये सोचो दिस इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 0.89 डिवाइड बाई, ये बेटा g है, ये कितना हो जाएगा g स्क्वायर। क्लियर? अब देखो एक काम करो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए बेटा, 2g चाहिए ना, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज v स्क्वायर। क्लियर? हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको कैसे भी करके कन्वर्ट करना है बेटा, किसमें, रेंज में, ठीक है। तो टी ए बी है ना, तो टी ए बी का स्क्वायर आ गया, तो एक काम करते टी ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी ए बी ये कितना हो जाएगा बेटा, v साइन थीटा डिवाइड बाई g एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 0.81, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 0.9 मल्टीप्लाई v साइन थीटा डिवाइड बाई g। क्लियर? अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन में, मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर x की वैल्यू पहले फाइंड करना, तो x कितना आ जाएगा बेटा, v cos थीटा मल्टीप्लाई टी ए बी। क्लियर? टी ए बी कितना हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई v साइन थीटा डिवाइड बाई g। अब समझो बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, v स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई g, ये तो है, साथ में 0.9/2 भी है। क्लियर? ये वैल्यू क्या होगी बेटा d, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9d/2, ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, x की। यस और नो? अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए यहाँ पर d डैश की वैल्यू, है ना, तो d डैश की वैल्यू कैसे आएगी, सोचो, ये है हमारा x, है ना, तो d डैश की वैल्यू हो जाएगी दिस इज d/2 प्लस x, है ना, तो d/2 प्लस x की वैल्यू कितना बेटा 0.9d/2, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो 1.9d/2, ये हो गया। क्लियर? ये वैल्यू आ गई 0.95 टाइम्स ऑफ d। क्लियर? सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो d डैश है
वो कितना हो जाएगा 0.95 टाइम्स ऑफ डी. सॉरी, दिस इज इक्वल टू 0.95 टाइम्स ऑफ डी. तो इस क्वेश्चन में भी हमें ये बोला था कि डी डैश जो है वो n टाइम्स ऑफ डी है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू 0.95. क्लियर? सो करेक्ट आंसर वी हैव 0.95. क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सो अगर बेटा इसका एनालिसिस देखें तो एनालिसिस बोले तो डेफिनेटली बेटा देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. प्रोजेक्टाइल में इतना हर बच्चे को आता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, टाइम कैसे निकालना है, बस थोड़ा सा चेंज किया था, यहाँ जी की वैल्यू निकाली. क्लिक करने वाला पॉइंट ये था कि एच मैक्सिमम दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्लियर? सो मैं इसको बोलूंगा यस इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ये क्वेश्चन था. क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द क्वेश्चंस. दिस इज रिलेटेड टू पेपर 1 सेक्शन नंबर